حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت کو میری طرف سلام پیش کرنا، واخبرہم، اور انہیں خوشخبری دینا، انہیں بشارت دینا کہ ان الجنت طیبۃ التربۃ وعذبۃ الماء، کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، بڑی عمدہ ہے، بڑی قیمتی ہے، اور اس کا پانی، جنت کا پانی بڑا ہی میٹھا ہے۔ وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، لیکن جنت ابھی بھرا نہیں، جنت سے چل میدان ہے، کھلا میدان ہے۔ وَأَنَّ غِرَاسَهَا، اس میں کاشتکاری کی ضرورت ہے، اس میں کھیتی کرنے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی سے پوچھا گیا کہ کھیتی کیسے کریں؟ کہتے ہیں کھیتی کرنا یہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، بعض روایت میں لا حول ولا قوت الا باللہ، جو اذکار پڑھتے ہیں اس کے ہر کلمے پر جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، جنت میں اس کے لیے کاشتکاری کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ ہمہ قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے مجھ اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، اور آج مسجد ابو بکر میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ اور آپ کو جمع ہونے کا شرف بخشا۔ بعدہ تمام انبیاء کرام پر ہم اور آپ درود و سلام بھیجتے ہیں، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام میں اور آپ بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہم اور آپ ماہ رجب سے گزر رہے ہیں۔ آج رجب جو حرمت والے مہینے ہیں، 24 تاریخ ہے۔ بعض مسلمان، اس سے پہلے ماہ رجب کی بدعات کے بارے میں آپ کے سامنے بتایا گیا تھا کہ رجب کے مہینے میں کیا کیا لوگ بدعات کرتے ہیں۔ ماہ رجب میں 27ویں تاریخ کو شب معراج لوگ مناتے ہیں، یعنی 27ویں رات کو پوری رات خصوصی طور پر عبادت کرتے ہیں، نعت خوانیاں ہوتی ہیں، محفلیں سجتی ہیں، دینی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، اور عجیب و غریب واقعات پیش کرتے ہیں، اور پھر صبح کو روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اور یہ چیز، تمام چیز، بعض مسلمانوں کو اللہ ہدایت دے، یہ چیز دین سمجھ کے کرتے ہیں، جبکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے مناسب سمجھا گیا کہ آج کے خطبے میں اسراء اور معراج کا جو عظیم واقعہ ہے، اس واقعے کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں A to Z آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے، آپ سبھی حضرات کو حق بات سننے، سب سے پہلے مجھے اور آپ سبھی حضرات کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد معجزات عطا فرمائے۔ ان میں سے جو سب سے عظیم معجزہ ہے وہ اسراء اور معراج کا واقعہ ہے۔ اسراء اور معراج کس کو بولتے ہیں؟ اس کے دو اجزاء ہیں، دو حصے ہیں، ایک اسراء، دوسرے کا نام معراج۔ اسراء بولتے ہیں مکہ المکرمہ سے بیت المقدس کا جو سفر آپ نے کیا، اور بیت المقدس میں آپ نے جو تمام انبیاء کی امامت کرائی، اور پھر وہاں سے پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو معراج ہوا، تو یہ بیت المقدس کا سفر یہ مصرع ہے۔ معراج بیت المقدس سے لے کر 7واں آسمان تک، جنت و جہنم کے مشاہدات، یہ معراج اس کو بولتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور یہ ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے، کہ اسراء اور معراج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں
जिस्मानी समेत अल्लाह तबारक व तआला ने ये मिराज का वाक़या कराया, ना ये कि ख्वाब की हालत में रूहानी तौर पर। बहुत सारे लोग कहते हैं ख्वाब में, नहीं, ये जिस्मानी तौर पर, और आप बेदार थे उस हालत में, आपको रात के एक हिस्से में ये मिराज का वाक़या कराया गया। दलील क्या है? अभी आपके सामने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 1 पढ़ी गई खुतबे मुसन्ना के बाद, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सुब्हानल्लज़ी, अल्लाह पाक है जिसने अपने ही एक मुअज़्ज़ज़ और हबीब बंदे को रात के एक हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले जाया गया, और उसके इर्द गिर्द यानी बैतुल मक़दिस के इर्द गिर्द हमने बरकतें डाल रखी है, क्योंकि ये बैतुल मक़दिस ये अंबिया किराम का ये मस्कन है, यहाँ पैदा हुए, यही उनका फात है, बाबरकत जगह है, हमने बाबरकत रखी है। बैतुल मक़दिस कहाँ है? ये फिलिस्तीन के शहर अल कुदस, और उसका पुराना नाम जो है इलिया है, और वहीं पर मस्जिद अक़सा है। कहते हैं ये क्यों, ये वाक़या हम क्यों दिखाएं? लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपनी कुदरत के चंद निशानियां अपने हबीब को दिखाएं। अल्लाहु अकबर। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, अल्लाह बहुत ज्यादा सुनने वाला और बहुत ज्यादा देखने वाला है। मेरे मोहतरम भाइयों, इस वाक़े को अगर हालात से जोड़कर देखेंगे तो आपको मालूम होगा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सदमे में थे, इतने तकलीफ में थे, शायद कभी इतने तकलीफ में हो। सन 10 नबूवत में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी शरीक हयात हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ात होती है। उसी के कुछ महीने के बाद आपके सगा चचा जो हर मोड़ में साथ देते हैं अबू तालिब के इंतकाल हो जाते हैं। फिर मक्का से ताइफ जाते हैं दावत तबलीग के लिए, कोई एक भी कबूल नहीं करते हैं, और आपको लहूलुहान किया जाता है। आप बिल्कुल लहूलुहान होते हुए गम में, पहले ही गम में थे, और ऊपर से ये इन गुंडों ने और आबाशों ने, ताइफ वालों ने बहुत जोर से मारा, और यहाँ तक कि आपके पैर मुबारक लहूलुहान हो गए। ये हालात इतना था कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब को अपने पास बुलाया, और हिकमत ये भी है कि ऐ नबी, मेरे हबीब, दुनिया वाले आपको कबूल नहीं तो क्या हुआ, हम आपका इस्तेमाल करते हैं, आपको इनामात से नवाजते हैं, और आपको ऐसे ऐसे इनामात देते हैं। आइए बिला इख्तिसार की बहुत तवज्जो चाहूंगा आप लोगों का। एक एक, अगर जो लोग बाद में आएंगे उसको आज खुतबा समझ में नहीं आएगा, मैं पहले क्लियर बता रहा हूँ। लोग जो बाद में आते हैं वो आना नहीं चाहिए। खुतबा जुमा इबादत है, बाद में आके इससे पहले, इससे अच्छा है कि आप जुमा की नमाज मत आओ। जुमा का दिन ये जो खुतबा है, ये असल यही तो खुतबा है, खुतबा ही इबादत है। बात की नमाज तो हम पढ़ते रहते हैं, तो असल ही खुतबा है। तो आइए बिला इफ्तिखार के इसरा और मेराज का वाक़या खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बानी में हम सुनते हैं। यहाँ हदीस तिरमिज़ी की, इब्न माजा, मुस्लिम की कई अहादीस है, सब अहादीस को जोड़ कर एक एक करके बयान कर रहा हूँ, ताकि कई हदीस लेंगे तो कुछ हदीस इसमें है, कुछ हदीस उसमें है, बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए सिर्फ हदीस को जोड़ते हुए सब हदीस को एक एक के बाद दिगरे इंशाअल्लाह आपके सामने बयान की जाएगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं मक्का अल मुकर्रमा में अपने घर में सोया हुआ था। बाद रिवायत में है कि मैं उम्मे हानी जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमशीरा यानी उनकी बहन के घर में था। इतने में एक आने वाला आया, यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, और आपको उठाकर खाने काबा के हतीम जगह में लेके गए। हतीम वो जगह है जो खाने काबा से बड़ा हुआ हिस्सा है, जो कुरैश के लोग जो हलाल रिज़्क़ ना होने की वजह से उस जगह को अभी भी छोड़ दिए हैं। उस वक्त छोड़ दिए थे क्योंकि हलाल रोजी नहीं थी और हराम रोजी से उसकी तामीर नहीं कर सकते थे, इसलिए आज भी वैसा ही है। तो उस हतीम में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अमीन लेके गए। आप कुछ देर वहां आराम किए। फरमाते हैं कि मुझे औंग तारी हुई, ना मैं सही से सोया ना सही से मैं जागा। इसी हालत में मेरे हलक से लेकर नाफ तक चीरा गया और मेरे दिल को, कल्ब को निकाला गया, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्ब को माह जमजम के पानी से धोया गया। और हज़रत जिब्रील जो एक सोने का तश था, सोने के प्लेट था, इसमें ईमान और हिकमत भरा हुआ था, मेरे सीने को ईमान और हिकमत से भरकर फिर पहले की तरफ सी दिया और मुकम्मल बंद कर दिया। फिर कहते हैं सुम्मा उतीतु बिदाब्बतिन अबयज़, फिर एक ऐसा जानवर लाया गया
जो इंतहाई सफेद था, युकाल अल बुराक, इसको बुराक कहते हैं। लोग बुर्राक कहते हैं, बुर्राक नहीं है, बुराक कहते हैं। कि बुराक कैसा था? ये गधे से बड़ा, खच्चर से छोटा था। गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था, जिसकी हर कदम उसकी निगाह तक हद निगाह थी। यहां तक जहां तक वो देख सकता था उसकी एक टाप वहां तक जाती थी, इतनी स्पीड थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुराक पर बैठने गए तो बुराक जरा बिदकने लगा, जरा परेशान करने लगा। तो हज़रत जिब्रील अमीन कहते हैं, ऐ बुराक, तुझे मालूम नहीं तुम नबी के साथ ऐसा कर रहे हो? फमा रकिबका अहदुन अकरमु अलल्लाहि मिन, तुम्हारे ऊपर आज से पहले इतना मुअज़्ज़ज़, इतना मुकर्रम हस्ती अल्लाह के यहाँ कोई ऐसा नहीं जो तुम्हारे ऊपर सवार हुआ। मैं तो खुश मनाना चाहिए। कहते हैं जैसे ही ये जिब्रील अमीन की बात सुनते हैं, वो बुराक पसीने में शराबोर हो जाते हैं, पसीना पसीना हो जाता है। चुनांचे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुराक पर सवार होते हैं और मिनटों में बैतुल मक़दिस पहुंचते हैं। जो उस जमाने में 40 दिन का सफर है, मिनटों पहुंचते हैं। आज तकरीबन 1300-1300 किलोमीटर है मक्का से बैतुल मक़दिस। बैतुल मक़दिस जाते हैं और बुराक को वहां बांधते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां तमाम अंबिया कराम के जानवर को और सवारी को बंधे हुए थे। अंदर जाते हैं बैतुल मक़दिस, मस्जिद अक़सा जाते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद तमाम अंबिया किराम की इमामत में नमाज पढ़ाते हैं। तमाम अंबिया किराम पीछे हैं सब में और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम बने हुए। अल्लाह अकबर, ये एजाज मिला हमारे नबी को। वहीं से तमाम अंबिया के सरदार हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे। जब बाहर आए तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपकी मेहमान नवाजी के तौर पर 2 बर्तन लेकर आए, एक बर्तन में शराब और एक बर्तन में दूध था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध वाले बर्तन को इंतखाब किया। कहा कि अगर आपने दूध वाले बर्तन को इंतखाब ना किया होता तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। आपने फितरत को चुना, फितरत को चुना। यानी दूध में जिस तरह खालिस होती है, ये दीन भी खालिस है, इसमें शिर्क की कोई मिलावट नहीं है। फिर यहां तो इसरा की बात हुई। अब यहां से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले आसमान पर ले गए। दरवाजा नोक किया, कहा कौन? कहा आदम। कहा मैं जिब्रील। कहा आपके साथ कौन? कहा कि मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा आपको बुलाया गया? कहा कि हाँ बुलाया गया है। कहती मरहबन बिही वला निअमल मजीउ जा, खुश आमदीद हो, कितना बेहतरीन आने वाला आया है, खुश आमदीद हो। फिर दरवाजा खोला, देखा कि एक बुजुर्ग आदमी है जो बैठा हुआ है। कहा हज़रत प्यारे नबी फरमाते हैं जिब्रील ये कौन है? कहा कि ये आपका अब्बा हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, आपने सलाम करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करते हैं और गर्म जोशी से मुलाकात करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुआ देते हैं, मरहबा वेलकम बोलते हैं और कहते हैं नेक बेटे नेक नबी को मरहबा मेरी तरफ से। फिर दुआए खैर करते हैं। प्यारे नबी देखते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं जानिब कुछ साए हैं, बाएं जानिब कुछ साए हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दाएं तरफ देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, जब बाएं तरफ देखते हैं तो रोने लगते हैं। जिब्रील से पूछा गया कि ये क्या है? कहा कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। जब दाएं तरफ देखते हैं ये उनकी औलाद की अहले जन्नत की रूहें हैं और बाएं तरफ जो रो रहे हैं ये उनकी औलाद की जो है जहन्नमी रूह है, जो जहन्नम जाने वाले हैं। चुनांचे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम 2 से आसमान पर लेके जाते हैं। सेम बातें होती हैं, सेम गरम जोशी से मुलाकात होती है। यहाँ पर दूसरे आसमान पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से होते हैं, जो दोनों आपस में खालाजाद भाई हैं। फिर दुआ सलाम होते हैं, खैर की दुआ करते हैं। फिर उसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तीसरे आसमान पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके जाते हैं। तीसरे आसमान पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से होती है और फिर सेम वही बातें, सेम वही कलाम और आखिर में दुआ खैर करते हैं। प्यारे नबी फरमाते यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कि अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की आधी खूबसूरत फरमाई थी। इतने हसीन और जमील, इंतहाई खूबसूरत थे। ये कल कहने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर लेके गए। चौथे आसमान पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से सेम बातें हुई, सलाम हुआ, गरम जोशी से मुलाकात हुई और फिर वहां पर दुआए खैर कहते हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील 5वें आसमान पर लेके गए। 5वें आसमान पर हज़रत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर वही बातें, दुआए सलाम, बड़ी गर्मजोश मुलाकात, इस्तकबाल किए, खैर की तलकीन की, खैर की दुआएं की। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप छठे आसमान पर लेके गए। छठे आसमान पर प्यारे नबी की मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। अल्लाह अकबर। बड़े जोश से मिले, बड़े खुश मिजाज से मिले। कहा कि ये मूसा है, आप सलाम करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़कर सलाम किए। जब प्यारे नबी वहां से निकलने, जब जाने लगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़ारो कतार रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे। एक भाई, नबी आपस में भाई होते हैं। कहा गया कि आप क्यों रोते हो? कहा कि अल्लाह, मैं क्यों ना रोऊं, मेरे बाद एक ऐसा खूबरू नौजवान मबूस हुआ है जिसकी उम्मत बड़ी तादाद में, मेरी उम्मत से बड़ी तादाद में उसकी उम्मत जन्नत में जाएगी, यानी उम्मत मोहम्मदिया एक बड़ी तादाद में जन्नत में जाएगी। ये सुनकर ये चीज मुझे खाई जा रही, इसलिए मैं रो रहा हूं। ये कोई हसद नहीं था इस उम्मत की, नहीं, एक मोहब्बत थी अपनी। हर नबी अपने उम्मत के बड़े खैरखा होते हैं, बड़े चाहने वाले होते हैं। अपने उम्मत की फिक्र को लिए हुए ये फिक्र कर रहे थे, रो रहे थे कि मेरे बाद में आने वाला नबी, इसकी उम्मत बड़ी तादाद जन्नत में जाएगी और मेरी उम्मत मेरे ऊपर बहुत जो है इनकी नाकली और बदमाशी और इसी तरीके से नाफरमानी की वजह से ये लोग कम तादाद में जाएंगे। इसी तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील 7वें आसमान पर लेके गए। कितने आसमान पर? 7वें आसमान पर। 7वें आसमान पर गए, देखा तो एक बुजुर्ग शख्स है जो बैतुल मामूर से टेक लगा हुआ बैठा हुआ है। कहा कि जिब्रील ये कौन है? कहा कि आपका अब्बा, आपके अब्बू जान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल जो आए थे। कहा कि आपका अब्बा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। कहा कि बैतुल मामूर क्या है? कहा कि बैतुल मामूर ये फरिश्तों की इबादत गाह है, इसमें रोजीना 70,000 फरिश्ते बैठ के वक्त इबादत करते हैं, फिर उनमें से कयामत तक किसी की बारी नहीं आएगी। इतनी तादाद में फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह अकबर। और ये बैतुल मामूर खाने काबा के डायरेक्ट सामने है। कहते हैं कि अगर बैतुल मामूर से, हदीस का अल्फाज है, कोई चीज गिरा दी जाए तो डायरेक्ट खाने काबा पर गिरेगी, इतने सामने थे। अल्लाह अकबर। वहां पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मामूर में जब पहुंचे 7वें आसमान पर और कुछ आगे गए, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा, ये आखिरी स्टेप है, इसके आगे जिब्रील भी नहीं जा सकते थे। कहा कि सिदरतुल मुंतहा पर गए। वहां पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील को अपनी असली हालत में देखा। हज़रत जिब्रील जो तमाम फरिश्तों के मलाइका के सरदार हैं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी असली हालत में देखा कि उनके 600 पर थे। 100 नहीं, 200 नहीं, 600 पर थे। और एक मर्तबा इससे पहले देखे थे जब वही लेकर नाजिल हो रहे थे कि आसमान से जमीन तक पूरा उनके पर से भरा हुआ था। इतनी बड़ी शख्सियत थी वो। अल्लाह अकबर। यानी उसकी असली हालत में देखें। चुनांचे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर सिदरतुल मुंतहा में मेहमान नवाजी की गई आपकी, और आपके लिए 3 बर्तन पेश किए गए, एक शराब का, एक शहद का, एक दूध का। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध ही को इंतखाब किया। उस मौके पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु हज़रत जिब्रील कहते हैं आपने फितरत को चुना, आपने फितरत को चुना। कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सिदरतुल मुंतहा को जब मैंने गौर से देखा तो उसके जो फल थे मकाम हिज्र के मटके के बराबर फल थे, उनके जो पत्ते थे हाथी के कान के बराबर पत्ते थे। अल्लाह अकबर। वहां मैंने 4 नहरें देखी जो सिदरतुल मुंतहा की जड़ से लगी हुई थी। 2 नहरें पोशीदा, 2 नहरें जाहिरी। कहा कि ये कैसी नहर है? कहा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये सैहान है और जयहान है जो जन्नती नहरें हैं, और 2 नील और फुरात 2 नहरें हैं। 4 नहरें देखी थी। वहां पर जब आगे बढ़े प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि कलमों के लिखने की आवाज आ रही है, कलमों के लिखने की आवाज आ रही है। जो फरिश्ते बड़ी तादाद में लोहे महफूज से प्यारे अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो फैसले होते हैं वो फरिश्ते बड़ी तादाद में लिख रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में कलमों से लिख रहे हैं फैसले, तकदीर और दीगर चीजें। कहते हैं उसकी आवाज से एक कहकशा जैसे समा बन जाती है। अल्लाह अकबर। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 अहम तोहफे दिए जाते हैं। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अब एक पर्दा हायल हो जाता है, एक पर्दा हायल हो जाता है और सोने की टिड्डियां उसको घेर लेती हैं। कहते हैं सिदरतुल मुंतहा इतनी खूबसूरत है कि मखलूक में से कोई भी शख्स
اس کی صفت کو بیان نہیں کر سکتی، اتنی خوبصورت ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی ان کی اس چمکتی اور خوبصورتی کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہوا، مخلوق میں کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا اتنی خوبصورت۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی ہم کلام ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا، اللہ اکبر۔ دنیا والوں نے ٹھکرایا تھا، دنیا والوں نے مارا تھا میرے نبی کو، دنیا والوں نے طائف میں اتنے مارے تھے ہمارے نبی کو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بلا کر کیا کیا مقامات دکھا رہا ہے۔ جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی کے ذریعے بات ہوتی ہے، اور میرے محترم بھائیو 3 انعامات، 3 تحفے عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ سدرۃ منتہا ایک واحد جگہ ایسی ہے جو نیچے سے جو چیز بھی جاتی ہے اوپر چڑھتی ہے وہ یہی سدرۃ منتہا تک پہنچتی ہے، اس سے آگے نہیں جاتی ہے، اور جو چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے وہی سدرۃ منتہا میں پہنچتی ہے اور وہیں سے دیگر چیزیں جاتی ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَأُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ثَلَاثًا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 عظیم تحفے ملتے ہیں۔ پہلا تحفہ کیا ہے؟ وَأُوتِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، 5 ٹائم کی نماز ہے۔ دوسرا تحفہ ہے وَأُوتِيَ خَوَاتِيمَ سورۃ البقرہ، سورۃ بقرہ کی آخری 2 سورتیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی رات میں کسی بھی رات سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو کفاتاہ، اس کے لیے ہر غم، ہر پریشانی، ہر جادو جنات، ہر چیز سے کفایت کر جاتی ہے۔ کفاتاہ کافی ہو جاتا ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ اس کے بعد تیسرا انعام، تیسرا تحفہ پیارے نبی کو وَغُفِرَ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتِ، صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث نمبر 173 حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری امت کے ہر وہ شخص کو بخش دیا گیا، معاف کر دیا گیا، اس کے گناہ کو ختم کر دیا گیا جو اس امت میں سے اللہ رب العالمین کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرتے، یعنی جس کا خاتمہ توحید پر ہو، اس کے بڑے بڑے گناہ بھی اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 عظیم تحفے دیے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں داخلہ ملا، ثم ادخلت الجنہ، پھر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ پیارے فرماتے ہیں جب جنت میں داخل ہوا فَإِذَا فِيهِمْ جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ، وہاں دیکھے کہ قبے، موتیوں کے قبے لگے ہوئے ہیں اللہ اکبر جنت میں۔ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ، اور اس کی جو مٹی تھی خوشبودار تھی۔ پھر آگے چلے، جنت میں چل رہے ہیں، آپ جنت میں سیر کر رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، جنت دیکھے آئے ہمارے نبی جی، ایسے نبی ہم کو ملا۔ اللہ اکبر۔ جب چل رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے کسی کے قدموں کی آواز آ رہی ہے، قدموں کی، جوتے کی آواز، ٹک ٹک کر کے آواز آ رہی ہے۔ جبریل سے پوچھا گیا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ کہا کہ آپ کے پیارے مؤذن، آپ کے پیارے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو ہریرہ سے راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہے، پیارے نے فرماتے ہیں کہ جب معراج کر کے جائے فجر کی نماز کے بعد حضرت بلال کو بلائے، اے بلال ادھر آؤ۔ کہا کہ اسلام لانے کے بعد تمہارے اسلام میں سب سے زیادہ پر امید عمل کون سا ہے، اس سے تمہیں امید ہو کہ اللہ تجھے معاف فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، کوئی ایسا عمل آپ بتاؤ۔ کہا کہ اللہ کے نبی میرا تو کوئی خاص عمل نہیں، میں تو جو آپ دیکھتے ہیں میں اذان دیتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں جو آپ کے سامنے ہے، لیکن ہاں ایک بات ہے کہ میرا جب بھی وضو ٹوٹتا ہے یا میں جب بھی وضو بناتا ہوں، صحیح بخاری کتاب الجمعہ کی یہ روایت ہے کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے یا جب میں وضو کرتا ہوں، وضو کے بعد اللہ تعالیٰ جس قدر مجھے توفیق دیتا ہے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، جس کو تحیۃ الوضو بولتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تحیۃ المسجد، جب بھی مسجد آؤ 2 رکعت نماز کم سے کم پڑھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جب بھی وضو کرو، یہ تحیۃ الوضو ایک بڑی اعلیٰ صفت ہے کہ ایک انسان جب بھی وضو کرے تو اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ تو کہتے ہیں میں یہ کام کرتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوش ہوئی، کہا کہ میں جنت میں چل رہا تھا کہ تمہارے قدموں کی آواز، اس کی آہٹ جنت میں مجھے سنائی دے رہی تھی۔ اب سوچو کیا مبارک ہستی ہوگی وہ بلال جس کو لوگ معاملے سمجھتے تھے، لوگ مکے میں اس کے گلے میں لوگ جو ہے پھندے لگاتے تھے، اس کو مارتے تھے، گلیوں میں اس کے گھسیٹتے تھے، کیا کیا عذابات لوگوں نے دیا نہیں، کیا کیا اس پر عذابات نہیں ٹوٹے، ایسے وقت پر انہوں نے احد احد کا نعرہ لگایا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مقام بھی دیا، دنیا میں ہیں، دنیا میں اذان دے رہے ہیں، دنیا میں نماز پڑھا رہے ہیں، دنیا میں کبھی اقامت بول رہے ہیں، دنیا میں نبی کے ساتھ صحابہ کے ساتھ ہیں، لیکن مقام کیا ہے؟ مقام اللہ اکبر، جنت میں آپ کے قدموں کی آہٹ آ رہی۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے اور بھی مناظر دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم
में दिखाया गया कि जहन्नम में ये मनाजिर है। जहन्नम में बेशुमार मनाजिर देखे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जहन्नम में देखा कि कुछ ऐसे लोगों से गुजरे जिनके ये नाखून है, नाखून तांबे के बराबर है, जिनके नाखून तांबे के बराबर हैं, जो अपने ही जिस्म को, अपने ही चेहरे को और सीने को नोच खा रहे हैं। अल्लाह कहा कि ये कौन लोग हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर बताया ये वो लोग हैं कि याकुलून लुहूमन नास, जो लोगों के गोश्त खाया करते थे। मतलब गीबत क्या करते थे? दुनिया में लोगों के पीठ पीछे बुराई बयान कर रहे थे। और साथ ही साथ ये वो लोग हैं जो लोगों की बेइज्जती क्या करते थे, उसकी इज्जत की तान तशरी क्या करते थे। जो लोग किसी की इज्जत, ये हर मुसलमान की इज्जत मोहतरम है इस्लाम में। इस्लाम कबूल करने के बाद उसकी इज्जत, जान, माल सब मोहतरम है, लेकिन एक इंसान है कि उनकी तमाम लोग, कोई बुराई हो गई, कुछ गलती हो गई, सरेआम लोगों के सामने उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आज अच्छे एक इंसान है, लेकिन मामूली कोई गलती हो गई, इंसान है, गलती होती है, लेकिन आप क्या था, उसके आय पर पर्दा डालना था, उसको पर्सनल बताना था, लेकिन आप क्या है, पूरे पब्लिक के सामने, पूरे गांव और मोहल्ले के सामने उसकी बेइज्जती करते हैं। तो कल कयामत के दिन ऐसा होगा कि तांबे के बराबर, तांबे के उनके नाखून होंगे और अपने ही चेहरे को और जिस्म को नोच खा रहे होंगे। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में देखा कुछ ऐसे लोग हैं जिनके होठों को आग की कैंची से काटा जा रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह से सबसे पहले दुआ करता हूँ, अल्लाह इन तमाम खुसूसन अहले उलमा की अल्लाह इससे नजात अता फरमाए, तमाम मुसलमानों को इस अजाब से अल्लाह बचाए रखे। कहते हैं कि उनके होठों को आग की कैंची से, शफाहम बिमकारीजी बिन्नारिन, आग की कैंची से उनके होठों को काटा जा रहा है। कहा, जिब्रील से पूछा गया कि ये कौन लोग हैं, कौन बदनसीब लोग हैं? कहा कि हाउलाई खुतबा मिन उम्मतिका, नबी ये आपकी उम्मत के वो खतीब हैं जो मिंबर और मेहराब से लोगों को खैर की तालीम देते थे। यामुरूना बिल मारूफ व यनसौना अनफुसहुम अफला याक़िलून व यतलूना अल किताब अफला याक़िलून। ये लोग किताब भी पढ़ते थे लेकिन ये अकल नहीं रखते थे। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, मिंबर मेहराब कोई मामूली बात नहीं, जहाँ मकाम है उनके लिए अज़ाब भी उतना है। लिहाजा मैं अपनी तरफ से मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, आप लोग मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह इस मिंबर पर खास तौर पर अल्लाह वही बात कहने की तौफीक दे जो सबसे पहले मैं उस पर अमल करूँ। बहुत सख्ती की बात है मेरे को, एक इमाम, एक आलिम जिंदगी भर नेकी बात करे लेकिन कुछ गलती की वजह से अल्लाह उसको पकड़ रहा, कितनी बड़ी सजा होगी उनके होंठ को आग की कैंची से काटा जा रहा। अल्लाह तो हम उलमा की हिफाजत अता फरमा, अल्लाह हमसे उलमा की हिफाजत अता फरमा, अल्लाह उसे वही बात कहने की तौफीक दे जो सबसे पहले उसको अमल करे, अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक दे। चुनांचे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत व जहन्नम की मुशाहदात करने के बाद फिर जब रिटर्न आए 7वें आसमान पर, फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मुलाकात हुई, अल्लाहु अकबर, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस उम्मत के लिए बड़ा पैगाम है मेरे मोहतरम भाई, आज के खुतबे से पैगाम लेते हुए जाएं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक़री उम्मतक मिन्ना सलाम, मेरी तरफ से अपनी तमाम उम्मत को, क़यामत तक आने वाले तमाम उम्मतों को मेरी तरफ से सलाम पेश करना। अल्लाहु अकबर। सलाम का जवाब दो, अलैकुम सलाम, सलाम का जवाब दीजिए मेरे मोहतरम भाई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपकी उम्मत को मेरी तरफ सलाम पेश करना, वाख़बिरहुम, और उन्हें खुशखबरी देना, उन्हें बशारत देना कि अन्नल जन्नत तय्यबतु तुरबती व अज़बतुल मा, कि जन्नत की मिट्टी बड़ी पाकीज़ा है, बड़ी उम्दा है, बड़ी कीमती है, और उसका पानी, जन्नत का पानी बड़ा ही मीठा है। व अन्नहा क़ियान, लेकिन जन्नत अभी भरा नहीं, जन्नत चल मैदान है, खुला मैदान है। व अन्ना ग़िरासहा, उसमें काश्तकारी की जरूरत है, उसमें खेती करने की जरूरत है। प्यारे नबी से पूछा गया कि खेती कैसे करें? कहते हैं खेती करना ये है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, बाद रिवायत में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो अज़कार पढ़ते हैं उसके हर कलमे पर जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है, जन्नत में उसके लिए काश्तकारी की जाती है। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा पैगाम है जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस उम्मत के लिए दिया। यानी ये कलमे आपको जन्नत में तो लेकर जाएंगे ही, लेकिन ये कलमे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये ऐसे कलमात हैं, ये ऐसी जिक्र हैं, ऐसी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी इसके हर कलमे पर जन्नत में एक एक दरख्त लगाएगा। अल्लाह अकबर, कितनी खुशी की बात है, कितना मुबारकबाद है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से ये चीज़ें इस उम्मत को दिए हैं। चुनांचे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर 6ठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। कहते हैं जब मुलाकात होती है कि आपको आपके रब ने क्या तोहफा दिया? कहा कि 50 टाइम की नमाज,
कहा कि मैंने जहां तक तजुर्बा किया अपनी उम्मत का, आपकी उम्मत ये पढ़ नहीं सकती। चुनांचे आप जानते रहते हैं, आते गए जाते गए हम कलाम हुआ, यहाँ तक कि लास्ट में 5 टाइम की नमाज फर्ज हुआ। चुनांचे जैसे ही 5 टाइम की नमाज ये पूरा हुआ, बात हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात मुकम्मल हो गई, लेकिन जो मेरी बात है 50 वक्त की नमाज 5 टाइम कम कर दी गई, लेकिन सवाब उतना ही रहेगा, सवाब उतना ही रहेगा। 5 टाइम के अगर कोई मेरी ये उम्मत ये लोग पढ़ेंगे तो 50 टाइम 50 अवकात की सवाब उसको लेके जाएंगे, क्योंकि इस उम्मत की फजीलत है, इस उम्मत की खुसूसियत ये है कि एक नेकी 10 नेकी के बराबर है। कोई एक नेकी अगर मैं और आप करते हैं, इस उम्मत की खुसूसियत ये है और फजीलत ये है कि एक नेकी 10 नेकी के बराबर सवाब मिलेगा। तो ये 50 वक्त की नमाज जो थी 5 टाइम की नमाज हुई, लेकिन 5 टाइम की नमाज जो पाबंदी के साथ पढ़ते हैं सवाब कितना मिलेगा? 50 टाइम की नमाज का। अल्लाह अकबर। अच्छी बात होती है कि अब यहाँ मेरी बात में तब्दीली नहीं होगी और ये क़यामत यही मेरा पैगाम रहेगा। चनांचे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर बैतुल मक़दिस में जहाँ से गए थे वहाँ लेके आए। तो वहां से बुराक पर जो बुराक बांधे हुए थे, बुराक पे बैठे और फिर खाने का बाप कर लेके गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के पूरे हिस्से में, ये पूरा वाकया रात के कुछ हिस्से में हुआ। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा।